Namaskar. Myself, JVN Dr. S. Bundela, Professor, Faculty of Education and Methodology, Jyoti Vidyapeeth, Women's University, Jaipur, Rajasthan, India. Learners, today we will discuss on position of states in India, center and state relationship, part 2nd. So we will discuss this session in both language, English and Hindi. First in English, then after Hindi. So first introduction, then other. This example of the constant change in the center-state relationship shows how federalism has become stronger in practice. How will the constitutional system of power sharing take reality? It depends on how the ruling party follow these systems. The state of the states in India has been constantly changing. Relationship between the center and the states can be divided into 3 parts. First, legislative relations, second, administrative relations, and third, financial relations. First, legislative relations in detail. Under the legislative relationship, the powers are divided by 3 leads between them, center and state. These 3 lists are union list, second is state list, and third is concurrent list. 97 subjects in union list and 66 in state list and 47 subjects in concurrent list were kept. The law can be made by the center in the matters of the state. One by one. A. If the subject of the state list is of national importance, because national importance is big except big area. B. In times of crisis or emergency. Emergency subject is big subject. Then C. In observance of treaties with foreigners, and other on failure of constitutional machinery in the state as per Article 356. This article is very important for competitive exams like civil services and other competitive exams.
Second relation is administrative relations. Under this, the center performs the following functions. First is can give directions to state governments. Second, can assign federal work to state governments. The next, can create new All India services as per Article 312. This article is very important for competitive exams like civil services, state and center both. And next, betting while giving grants to states. And next, establishment of central councils or committees of states. After two relations, we discuss third, financial relations. Under this, the center performs the following functions. First, determining tax rules and regulations and ratio of tax between center and state. Then next, controlling the accounts of the states through CAG. CAG is very important authority regarding accounting, controlling, etc. Next, states have to accept the condition of grant and loan from center. Let's see in हिंदी. देखिए लर्नर्स, हमने अब तक भारत में राज्यों की स्थिति के ऊपर अलग अलग वीडियो में बात की, प्रस्तावना को लेकर, अर्थ को लेकर, और केंद्र और राज्यों में पहले जो रिलेशन थे भारत में, फर्स्ट स्टेप की बात की थी हमने. और अब हम बात कर रहे हैं सेकंड स्टेप, जिसमें केंद्र और राज्य का जो संबंध है उनमें क्या विशेष बात है, उनको लेकर हम बात कर रहे हैं. तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं प्रस्तावना को लेकर, इंट्रोडक्शन को लेकर, कि केंद्र और राज्य संबंध में लगातार बदलाव आते जा रहे हैं और संघवाद जो है, फेडरलिज्म जो है, इससे प्रभावित हुआ. सत्ता की साझेदारी की संवैधानिक व्यवस्था वास्तविकता में कैसा रूप लेगी, ये भी एक सोचने की बात है. ये इस बात पर निर्भर करता है कि शासक दल किस प्रकार से इस व्यवस्था को बनाए रखते हैं या उसका अनुसरण करते हैं. भारत में राज्यों की स्थिति में निरंतर बदलाव आता रहा है. पहले के समय कुछ अलग था, क्योंकि हमने पार्ट फर्स्ट में बात की थी, और जो वर्तमान समय है उसमें अलग परिस्थितियां हैं. भारतीय संविधान में केंद्र को अधिक शक्ति संपन्न बनाया गया है. ये हम भारतीय संविधान में पढ़ते हैं, देखते हैं, समझते हैं. देखिए, केंद्र और राज्यों के बीच में संबंधों को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है, विभक्त किया जा सकता है, जिसमें सबसे पहला है विधायी संबंध, दूसरा प्रशासनिक संबंध और तीसरा है वित्तीय संबंध. इनको हम एक एक करके विस्तार से समझेंगे, जिसमें सबसे पहला है विधायी संबंध. विधायी संबंध के अंतर्गत दोनों के बीच में 3 सूचियों के द्वारा
शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया है। और ये 3 सूचियां जो है वो है संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। शुरू में जब इन तीनों सूचियों की बात की गई थी तो उसमें जो विषय रखे गए थे, बहुत बार कई बार ये प्रतियोगिता परीक्षाओं में आता रहता है कि केंद्र सूची या संघ सूची में कितने विषय रखे गए थे। विषय से मतलब है कि केंद्र सरकार इन विषयों से संबंधित कानून बनाए। तो उस समय कितने विषय रखे गए थे? 97 राज्य सूची में 66 और संवर्ती सूची में 47 विषय रखे गए थे। मतलब संवर्ती सूची जिसमें केंद्र और राज्य दोनों ही उन विषयों पर कानून बनाए। परंतु देखिए, विशेष बात यह है कि अगर दोनों ने किसी विषय पर कानून बना लिया और दोनों में विवाद हो गया तो उस स्थिति में किसके कानून को माना जाएगा? केंद्र सरकार के कानून को, क्योंकि ऐसा हमारे संविधान में बताया गया है। अब केंद्र के द्वारा राज्य के मामलों में कानून बनाया जा सकता है। कुछ बिंदुओं पर बात करेंगे, जिसमें सबसे पहला है राज्य सूची का विषय राष्ट्रीय महत्व का अगर है तो उस पर केंद्र सरकार कानून बना सकती है। भले ही वो राज्य सूची का विषय हो, परंतु अगर पूरे देश को लेकर, पूरे राष्ट्र को लेकर अगर महत्व की बात है तो वो राज्य सरकार की बजाय केंद्र सरकार उस पर कानून बना सकती है। इसके बाद में अगर कहीं कोई संकट काल आ जाए, कहीं इमरजेंसी आ जाए, तो उस समय भी केंद्र देश के लिए राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। इसके बाद में अगला है विदेशों के साथ अगर संधि होती है तो उसकी पालना में भी, भले ही वो राज्य सरकार का विषय आता हो, परंतु फिर भी केंद्र सरकार उस पर कानून बना सकती है। इसके बाद में राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर, जो कि अनुच्छेद 356 में बताया गया है कि किसी राज्य में अगर संवैधानिक तरीके से शासन नहीं चल रहा है तो उस स्थिति में केंद्र सरकार राष्ट्रपति शासन लगा सकती है। इसके बाद में दूसरा संबंध है प्रशासनिक संबंध। इसके अंतर्गत केंद्र निम्नलिखित कार्य कर सकता है। पहला, राज्य सरकारों को वो निर्देश दे सकता है, किसी भी मामले को लेकर, काम को लेकर निर्देश दे सकता है, आदेश दे सकता है। दूसरा, राज्य सरकारों को संघीय कार्य सौंप सकता है। अगर वो चाहे तो केंद्र सरकार के अंतर्गत आने वाले कार्यों को भी राज्यों को सौंप सकता है। इसके बाद में अगला है नवीन अखिल भारतीय सेवाएं बना सकता है, अनुच्छेद 312 के अनुसार। ये बहुत बार, कई बार आपके सिविल सर्विस और दूसरी प्रतियोगिता परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है कि अनुच्छेद 312 में क्या बताया गया है। तो इसमें क्या बताया गया है कि जो केंद्र सरकार है वो नई अखिल भारतीय सेवाएं बना सकती हैं। ऐसा राज्यसभा को अधिकार मिला हुआ है। इसके बाद में राज्यों को अनुदान देते वक्त शर्त लगा सकता है। जो केंद्र सरकार है उसके पास में पावर है कि वो क्या कर सकती है कि केंद्र को, क्योंकि देखिए केंद्र के पास में बहुत ज़्यादा पावर्स हैं, पैसा है, और राज्यों को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए, योजनाओं को बनाने के लिए, लागू करने के लिए और पैसे की आवश्यकता पड़ती है, जिसकी पूर्ति केंद्र सरकार के द्वारा की जा सकती है। परंतु केंद्र सरकार उनको अनुदान, ग्रांट या लोन देते वक्त क्या करती हैं? शर्तें लगाती हैं, उसका पालन उनको करना होता है। इसके बाद में है राज्यों के बीच में अगर कहीं विवाद होता है तो उसके लिए अंतर्राज्यीय परिषद या समितियों की स्थापना करके, केंद्र सरकार के पास में ये पावर है, ये राइट्स हैं कि वो राज्यों के बीच में अगर कहीं विवाद होता है, जैसे जल को लेकर, है ना, नदियाँ बहती हैं, उनमें जल को लेकर आपस में राज्य लड़ते रहते हैं कि भाई ये मेरे हिस्से में इतना जल आएगा, ये मेरे हिस्से में इतना जल आएगा। तो कहीं न कहीं इन विवादों को दूर करने के लिए एक परिषद होती है, काउंसिल होती है, ठीक है, उनकी स्थापना केंद्र सरकार के द्वारा ही की जाती है, जिनकी पालना उनको करनी ही होती है।
इसके बाद में तीसरा है वित्तीय संबंध। अब देखिए जो वित्तीय संबंध है, फाइनेंशियल जो रिलेशन है, इसके अंतर्गत केंद्र निम्नलिखित कार्य करता है, जिसमें सबसे पहला है करों को तय करना। अब देखिए जो टैक्स है वो कई प्रकार के होते हैं। एक तो जो केंद्र के ही हैं, जो राज्य भी लगाता है, ठीक है, मतलब केंद्र ने लगाया और राज्य ने कहीं ना कहीं उसको कलेक्ट किया, तो उसमें शेयरिंग कितना होना चाहिए, हिस्सा कितना होना चाहिए, केंद्र का कितना होना चाहिए, राज्य का कितना होना चाहिए, इसको तय करने का काम भी केंद्र का एक आयोग होता है, वित्त आयोग, वो ही तय करता है। इसके अलावा अगली बात होती है कैग के माध्यम से राज्यों के खातों पर निगरानी रखना या नियंत्रण रखना। आपने नाम सुना होगा कैग, बहुत महत्वपूर्ण अधिकारी है केंद्र सरकार का। जितने भी जो भी सरकारी खाते हैं उनकी जांच करने का अधिकार पूरे भारतवर्ष में इसको मिला हुआ है। केंद्र सरकार के खाते भी और राज्य सरकारों के खातों की जांच भी ये कर सकता है। कैसा उनको मेंटेन करना है खाते, उनके बारे में भी नियम बनाता है। ये कैग की ही जिम्मेदारी है, कैग के पास में ये अधिकार है। तो वो किसका अधिकारी है? केंद्र सरकार का। तो उसके माध्यम से भी कहीं न कहीं आपके राज्यों पर ये नियंत्रण रख सकती है। इसके अलावा अपन बात करते हैं राज्यों को अनुदान और लोन देने के संदर्भ में। जैसे कि हमने अभी बात की थी कि जो राज्य हैं उनके पास में अपने सोर्सेज कम होते हैं, ठीक है। सेंटर जो है, केंद्र जो है, उसके पास में ज़्यादा सोर्सेज होते हैं, संसाधन होते हैं। तो कहीं न कहीं जब कम उसके पास में पड़ जाते हैं राज्यों के पास में, तो उनको सेंटर के पास में मदद लेनी होती है, उनसे ग्रांट लेनी होती हैं, उनसे लोन लेना होता है और उन लोन और ग्रांट्स पर कंडीशंस लगाने का काम, शर्त लगाने का काम कौन करती है? केंद्र सरकार। तो उन शर्तों के हिसाब से अनुसार उनको काम करना होता है और उनकी पालना करनी होती है, तब जाके कहीं न कहीं उनको वो ग्रांट सैंक्शन की जाती है। तो कहीं न कहीं आज के जो हमने संबंध की बात की है, जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में देखा गया है, उसमें 3 बेसिकली होते हैं, जिसमें सबसे पहला विधायी संबंध, दूसरा प्रशासनिक संबंध और तीसरा वित्तीय संबंध। तो ये तीनों जो संबंध हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है दोनों के बीच में, और इन संबंधों के द्वारा ही कहीं न कहीं उनमें तालमेल बना रहता है। बट हमने जो देखा उसमें यही कि केंद्र सरकार हर मामले में मजबूत है, उन्हीं के निर्देश, उन्हीं के कंट्रोल में, उन्हीं के डायरेक्शन में कहीं न कहीं राज्यों को काम करना होता है, ठीक है। तो जो भारतीय संविधान है, उस भारतीय संविधान में इन दोनों के बीच में जो संबंध है उनकी बात क्लियर की गई है और उन्हीं के हिसाब से उनको काम करना होता है। तो आज का जो हमारा सेशन था उसमें हमने बात करी कि केंद्र और राज्य के बीच में कितने प्रकार के संबंध हो सकते हैं, ठीक है। कैसे केंद्र सरकार मजबूत होती है, राज्य जो हैं उनके सभी निर्देशों का, सभी नियमों का पालन करते हैं। तो आप आज इस सेशन को पढ़ने के बाद क्या सीखते हैं, कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, आप इसको तैयार कीजिए कहीं न कहीं सिविल सर्विस में, ठीक है, या और दूसरे जो एग्ज़ाम्स हैं उन सभी एग्ज़ाम्स में इसको पूछा जाता है। तो उस दृष्टि से ये जो सेशन आज का वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो मैं कई बार जब बात करता हूँ बच्चों से तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जो इस प्रकार के जो क्वेश्चंस आते हैं, जैसे आर्टिकल हैं, जैसे हमने आज के सेशन में बात करी 356, ठीक है, 312, 312, तो कहीं न कहीं ये कुछ ऐसे अनुच्छेद हैं, आर्टिकल हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से, कंपटीशन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जिनको हमको पढ़ना चाहिए। अलग से नोटबुक अपनी तैयार करनी चाहिए जिसमें हमको इस प्रकार के क्वेश्चंस को नोट डाउन कर लेना चाहिए। ये जो कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस होते हैं ये हमारे लिए बहुत हेल्प करते हैं। तो ये जो सेशन आज का वो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस को तो प्रिपेयर करता ही करता है, इसके अलावा इसमें से काफ़ी क्वेश्चंस जो वो आपके कॉम्पिटिटिव भी प्रिपेयर हो सकते हैं।
तो ये हम पे निर्भर करता है कि हम किस प्रकार से हमारे सेशन को कंप्लीट करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय नारी शक्ति।